of the heritage and the culture of the monument. The week-long celebration aims to create awareness about the importance of culture and tradition and and the to protect them. And over 3,691 monuments are protected by ASI, and 143 monuments and sites are ticket, and approximately 745 monuments, high number of monuments located in Uttar Pradesh, and uh, and 40 sites in India, across India, uh, listed as UNESCO World Heritage Sites, and among 32 cultural sites, seven are uh, natural sites, and one each mixed sites. So I would like to invite Gargi. Okay, thank you so much, Rajiv, for such brief introduction about World Heritage Week. And now I think Principal Ma'am hasn't joined yet, right? Couldn't join. She is Principal Ma'am there? नहीं Rajiv, मैम can you? ज्वाइन नहीं कर पाई हैं अभी क्योंकि Uh, वो मीटिंग में है अभी. she okay. She is in a meeting and she shared her blessings with us, and she is being constant inspiration of us always. But unfortunately, she couldn't join. But she shared her message with us that she will join in between whenever she get time from her meeting. So. Without wasting much time, I now further proceed to give a brief introduction about our today's speaker, respected speaker. Today we have respected Dr. Shankar Sharma sir with us as a speaker. Dr. Sharma is an archaeologist working with ASI since 2003. He is presently serving as Assistant Superintending Archaeologist in Archaeological Museum of Nalanda under ASI. He has worked in several archaeological explorations and excavations under ASI. He has also served as a research officer in National Museum, New Delhi. He authored a book called Bihar Cultural Eminence, which was published in 2017. And he also has several articles in national and international journals. So, without wasting much time, I request Dr. Shankar Sharma sir to deliver his talk with us. Sir. Thank you, everyone. First of all, I would like to thank Dr. Rajiv Kumar Jaswalji for creating this platform, or inviting me to make a talk on very favorite site, archaeological site, that is Nalanda. And I would also like to thank Dr. Gargi Chatterjee ji for my introduction. Further, I would like to thank the principal, ma'am, Professor Alka Singh ji of Basanta College, and all the participants, students, and colleagues. As about the program, Dr. Rajiv has already briefly elaborate about the occasion of the World Heritage Week, that is being celebrating by all of the heritage concerned institutions in whole of the country, and even beyond the India. As you know that I'm going to talk about my specialized subject, that is on Nalanda, under the title Unearthing and Conservation of Structural Vestiges of Ancient Nalanda University
a World Heritage Site. Before it, I want to share my today presentation. Dr. Raju, is it coming, my slide? Hello? Not yet, Priya. Is it coming? Not yet. Just I am sharing my window. Is it coming? Yes. Okay, thank you. So, as we know that Nalanda in whole of the history of the ancient period deserve its a special significance in terms of archaeological aspect and the historical aspect. Nalanda is one of the most important archaeological site in whole of the world because of its nature of structural morphology and its historical significance. Actually, with this presentation, I would like to share my experiences, whatever I have gained during the field work since last decade, working on its preparing nomination dossier to submit to the World Heritage Center of UNESCO for inscription among the list of the UNESCO World Heritage Site. I was assigned by our department to carry out and to provide the architectural and structural detailing of the site. Meanwhile, I have understand so many things, whatever are uh, added with the site. Briefly, very briefly, I would like to tell here about its short history. मैं बीच बीच में हिंदी भी बोलूँगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नालंदा जो पूरा स्थल है, यह प्राचीन मगध राज्य की राजधानी राजगीर के उत्तरी परिक्षेत्र में स्थित है और यह राजगीर का बाहर नगर का एक ग्राम था, बाहरी ग्राम था, जैसा कि एंशिएंट लिटरेचर में हमको विवरण मिलता है। इसका हिस्टोरिकल जो संदर्भ है वो हमको प्राचीन जैन साहित्य, जिसमें भद्रबाहु का कल्पसूत्र, सूत्राकृतांगा इसमें मिलता है, बौद्ध साहित्य के विभिन्न निकायों में मिलता है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है। सिंहली जो क्रॉनिकल्स हैं जिसमें दीपवंश, महावंश, उनमें भी इसका हमको मिलता है, संदर्भ मिलता है। तिब्बतन जो अकाउंट है उसमें मिलता है और यहाँ से जो उत्खनन में प्राप्त अभिलेख हैं, यहाँ के जो मुहर हैं और मुद्राएं हैं, इनमें भी हमको नालंदा के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इसके ऐतिहासिक संदर्भ की अगर बात करें तो हम देखते हैं कि यही वो एक जगह था नालंदा जहां पर भगवान बुद्ध और महावीर का जीवन में एक बार मुलाकात हुआ था। नालंदा कैसे इतिहास में इतना महत्वपूर्ण बन गया, इसके पीछे कई कारण
प्रारंभिक जो हम लोगों का ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है वो है कि भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य सारिपुत्र निर्वाण दोनों भूमि स्थल जो है वो नालंदा ही था, और उनके जो सबसे ग्रेट ले फॉलोअर सम्राट अशोक, उन्होंने उनके कमेमोरेशन में यहाँ पर एक स्तूप का भी निर्माण करवाया था। उसके बाद लगातार पाल काल तक यह विभिन्न स्वरूप में अस्तित्व में रहा। कुषाणों के युग के भी अवशेष यहाँ मिलते हैं, परंतु इसका जो मुख्य जो महत्वपूर्ण स्वरूप जो भरता है वह गुप्त काल में आकर के होता है, जब यहाँ एक मोनास्टिक स्वरूप का अस्तित्व प्रकाश में आता है, जब इंस्टीट्यूशनल इस्टेब्लिशमेंट होता है, मोनास्ट्री का होता है। इट वाज कुमार गुप्त फर्स्ट, जिन्होंने यहाँ पर फर्स्ट मोनास्टिक इस्टेब्लिशमेंट किया था। नालंदा पूरे दुनिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था प्राचीन समय में जिसको हमारे जो इस पर अध्ययन करने वाले, अनुसंधान करने वाले स्कॉलर हैं, खास करके प्रोफेसर HD सांकालिया साहब, उन्होंने बताया है कि इट वाज यूनिवर्सिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज। उन्होंने ही पहली बार इसको यूनिवर्सिटी का भी टर्म दिया, और 5वीं शताब्दी से लेकर के इसको कई शासकों ने पैटर्नाइजेशन दिया, जिसमें गुप्तों के काल में, फिर हर्ष के काल में भी, और पालों के युग में विभिन्न अलग अलग पाल शासकों ने इसको प्रश्रय प्रदान किया। इसका जो प्रारंभिक इन्वायरमेंट था, जो लैंडस्केप था नालंदा का, वह उसका जो विवरण है हमको उस समय के बारे में, जो बाद के जो संदर्भ हैं उसमें जो वर्णन मिलती है, उसमें पता चलता है कि इट वाज नोन एज पावारिका, मैंगो का एक बहुत बड़ा गार्डन था। और नालंदा जब भी राजगीर वर्षावास के लिए आते थे, भगवान बुद्ध आते थे, तो इस पावारिका में भी वह जरूर जाते थे। तो उस समय से ये काफी प्रसिद्ध था। वैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है नालंदा का, अब तक जो एक्सकैवेटेड एरिया है वहां से सिर्फ 3rd सेंचुरी BC से ही प्रारंभ होता है, लेकिन अगर इसके पेरिफेरल एंटिक्वेरियन रिमेन्स का आप स्टडी करते हैं तो आप पाते हैं कि काफी सेटलमेंट है, और कई साइट्स का एक्सकैवेशन भी हुआ है जिसको ASI ने किया। और इसी का लोकेलिटी में NBP का अभी तक का जो रेडियो कार्बन डेट प्राप्त है ड्राफर डी साइट से, वो सबसे अर्लीस्ट डेट भी रहा। ये तो एक संक्षिप्त रहा इसका परिचय का बात। हमारा मेन आज का इस व्याख्यान का जो रूप है वो है कि नालंदा कैसे प्रकाश में आया, इसकी खुदाई कैसे हुआ, और इसका स्वरूप कैसा था। हमने नालंदा के उस समय के, जब अंग्रेजों के जमाने में इसका उत्खनन चल रहा था, उस समय के जो एल्बम्स में जो प्रिजर्व कर रहे हैं फोटोग्राफ्स, उसका जब स्टडी किया तो हमें लगा कि शायद नालंदा को बहुत लोगों ने उस दृष्टि से नहीं देखा है जब नालंदा खुदाई के पूर्व कैसा रहा होगा। और यह खुशी की बात है कि यह मेरा पहला प्रेजेंटेशन होगा जो आपके बीच में आर्काइवल डॉक्यूमेंट बेस्ड नालंदा के स्वरूप को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जानेंगे कि नालंदा आज इस स्वरूप में आने की कैसे कहानियां लिखता है। एक छोटा सा
यह भी सूचित करना चाहूँगा कि नालंदा पुरा स्थल यूनेस्को के लिस्ट में बहुत बाद में शामिल हुआ और यह अभी 15 जुलाई 2016 को नामांकित हुआ है। यह बहुत लेट प्रक्रिया था। नालंदा के स्वरूप के विषय में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा। जो यहाँ के आई विटनेस, जैसे यहाँ जो ट्रैवलर्स आए, खास करके चीनी यात्री लोग आए, उन लोगों ने अपनी आंखों देखा हाल कैसे नालंदा को वर्णन किया है। उनके टेक्स्ट में हमें नालंदा क्या मिलता है और क्या उसी रूप में भौतिक स्वरूप में नालंदा है या नहीं है, ये दोनों का तालमेल से भी हमको समझ में आती है बात। यहाँ मैं थोड़ा सा रीड करना चाहूँगा। 7th सेंचुरी के आई विटनर है हु ली। इन्होंने बोला है, The whole establishment is surrounded by a brick wall, which encloses the entire convent. One gate opens into the great college, from which are separated 8 other halls standing in the middle of the Sangharam. The richly adorned towers and the fairy-like turrets, like pointed hilltops, are congregated together. The observations, ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नालंदा का जो वर्णन है कि चीनी यात्रियों ने किस रूप में किया है और उसको हम लोग देखेंगे भौतिक स्वरूप में। दूसरा स्वानजांग जो आपको 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में आया था, 637 सी का एक रेफरेंस मिलता है। वो कहते हैं कि दे आर कंस्ट्रक्टेड विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल। A 3-story tower is erected at each of the 4 angles. The beams and projecting heads are carved with great skill in different shapes. The doors, windows, and low walls are painted profusely. The monk cells are ornamental on the inside and plain on the outside. In the very middle of the building is the hall, high and wide. तो इससे भी हमको स्वरूप के विषय में पता चलता है। आइसिंग ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नालंदा कुड क्लेम टू बी द मोस्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल ऑफ लर्निंग इन जम्बूद्वीप। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आई विटनेस है, जो ट्रैवलर अकाउंट्स जो हमारे हैं, उसमें भी इसके स्वरूप की चर्चाएं मिलती। बाद के एक चाइनीज मॉन्क थे जो नालंदा में आए थे, उनका नाम था मुनिश्री। उन्होंने बोला था कि द साइज ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट वाज 48 ली। उस समय ली एक पैमाना था मेजरमेंट का। इट वाज 48 ली इन सर्कमफ्रेंस एंड इन इट वेयर 9 viharas enclosed by a gated wall within which many as 10,000 students reside। ये तो हमको आई विटनेस के अकाउंट में मिलता है। अब हम इसके फिजिकल स्वरूप में देखेंगे कि क्या उतना बड़ा डायमेंशन है जितना ट्रैवलर अकाउंट में मिलता है, जितने इसके बारे में हियरसेज में मिलता है, जितने लीजेंड्स में मिलता है। हमें यह भी संदर्भ मिलता है कि यहाँ पर लगभग 10,000 लोग विद्यार्थी रहते थे और उनके 2,500 आचार्य थे, मेंटर्स थे। और दिस वाज फुली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। तो कल्पना कीजिए कि इतने एंशिएंट टाइम में नालंदा वर्ल्ड का रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। अगर इसके अस्तित्व पर हम जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कुमारगुप्त फर्स्ट, his period will be about 413 C। तो 413 C से लेके अप टू द पाल पीरियड, इट इज कवरिंग अप टू 12th century, अबाउट मोर देन 600 years। तो एक इंस्टीट्यूशन का जो अस्तित्व में रहना है किसी भी यूनिवर्सिटी का, 600 years का इसका एक शैक्षिक संस्थान का अस्तित्व का स्वरूप है। तो इस संस्था के महत्व को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर
न सिर्फ स्थानीय और भारतवर्ष के विद्यार्थी या भिक्षु रहते थे, बल्कि दुनिया के कई देशों से भी यहाँ लोग आकर के पठन एवं पाठन दोनों का काम करते थे। अब हम इस संक्षिप्त विवरण के बाद, क्योंकि किताबों में और एकेडमिक टॉक में रिसर्च के क्रम में हमें बहुत कुछ नालंदा के विषय में जानकारी मिल जाती है कि यहाँ किन विषयों का पढ़ाई होता था, क्योंकि एक छोटा सा मैं संक्षिप्त बताना चाहूँगा कि एज पर references available in ancient Buddhist scriptures, we found that here a discipline like metaphysics, logic, science, technology, philosophy, religion, इतने सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पर पढ़ाई होता होगा। इंस्टीड ऑफ दिस फाइन आर्ट्स एंड यहाँ तक कि युद्ध विद्या का भी होता था, क्योंकि ऐसा विवरण मिलता है। वेदों का, उपनिषदों का, इनका भी यहाँ पर अध्ययन अध्यापन होता था। अब हम आते हैं इसकी खोज की प्रति कि ये 700 वर्षों तक 12वीं शताब्दी के बाद, पालों के बाद, मैं 12वीं शताब्दी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें ऐसा ऐतिहासिक संदर्भ मिलता है जो मेडिवल लिटरल रेफरेंस है। एक रेफरेंस आता है मिन्हाज उल सिराज का, जो तबकाते नासरी में है। डॉक्टर राजीव जी, एम आई ऑडिबल? राजीव जी? Yes, भैया, you are audible. तो मिन्हाज उल सिराज के तबकाते नासरी में ऐसा वर्णन आता है कि तुर्क के जो एक सूबेदार था बख्तियार खिलजी, उसने उस समय के कंटेम्प्रेरी जितने भी इंस्टीट्यूशन थे, खास करके इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन जो साम्राज्य या देश और समाज के हित में काम कर रहे थे, उनको उसने नष्ट करने का प्रयास किया था और बहुत सारे को अस्तित्व खत्म नहीं किया था, ऐसा विवरण मिलता है। और आपको देखिए वर्णन बाद के और भी मॉन्क लोगों ने भी किया है। एक बौद्ध धर्म के इतिहास के मध्यकालीन इतिहास के लेखक थे तारानाथ, उन्होंने भी नालंदा के कैसे स्वरूप को नष्ट किया गया उसके बारे में वर्णन किया है। यहाँ उस समय रह रहे थे धर्म स्वामी, तो मॉन्क थे, लास्ट मॉन्क थे, उनको कंसीडर किया जाता था, करेक्ट किया जाता। उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे यहाँ के जो हमारे बहुमूल्य लाइब्रेरी का जो संपदा था उस अधिकारियों ने नष्ट किया। तो ये 12वीं शताब्दी तक का यहाँ इस संस्था के अस्तित्व में रहने का इतिहास हमें मिलता है। बीइंग एन आर्कियोलॉजिस्ट और ये हिस्टोरियन, ये हम लोगों का कंपैरेटिव एनालिसिस करना बनता है कि क्या 12वीं शताब्दी के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बाद भी यहाँ पर रिवाइव कर रहे हैं या सरवाइव कर रहे हैं। और हिस्टोरियंस भी इस चीज को देखेंगे कि आखिर ये लोग थे तो फिर वो कहाँ चले गए होंगे यहाँ से। तो ये एक अलग पहलू है जो पुरातत्व से दूसरे पक्ष से। अब हम इसकी एक खोज की तरफ में बढ़ते हैं कि इन 700 वर्षों में नालंदा का स्वरूप, हमारा घर 1 साल या 5 साल के लिए हम छोड़कर चले जाते हैं तो उसका स्वरूप कैसा हो जाता है, बिल्कुल वीरान हो जाता है। और किसी भवन को, किसी बिल्डिंग सेटअप को अगर 700 ईयर्स तक यूं ही छोड़ दिया जाए तो उसका स्वरूप कैसा होगा, और इसमें बीच में क्या क्या
कारण रहे होंगे, जो बिल्डिंग के स्वरूप में बदलाव के कारण बने होंगे, ये सारे आर्कियोलॉजिकल एंगल से भी हम इसके सोचेंगे। ये 18th सेंचुरी, सॉरी हाँ 1800 प्रारंभिक समय में जब यूरोपियंस लोगों का इधर आगमन शुरू हो जाता है, जब कॉलोनियल उनका सेटअप चल रहा था। आप जानते हैं कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा उस समय यहाँ बांग्लादेश तक सब एक ही प्रोविंस हुआ करता था, और इस क्षेत्र में यूरोपियन सेटलमेंट काफी अर्ली टाइम में जाता है। यहाँ पे पोर्तुगीज लोग भी पटना के क्षेत्र में यहाँ पर व्यवसाय के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ अपनी कंपनी बसाया था। फिर धीरे धीरे यूरोपियंस का आना बढ़ जाता है। तो फ्रांसिस बुकनन जो पहले हिस्टर थे इसके, उन्होंने इसका प्रारंभिक एक आख्या प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बोला कि कैसे नालंदा एकदम, नालंदा तो नहीं उस समय तो पहचान ही नहीं हुआ था बुकनन के टाइम में, कि जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जो फेमस विश्वविद्यालय था, वो यही खंडहर है। तो उन्होंने फिर भी एक आख्या प्रस्तुत किया है उस टाइम का। उसके बाद मेजर किट्टो यहाँ पर काम कर, एलेक्जेंडर कनिंघम, सभी लोग जानते हैं कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे। ही वाज द फर्स्ट who has site with identification of the place with the famous, the celebrated ancient Nalanda University. उन्होंने प्राइमरी सरफेस कुछ ऑपरेशन भी किया था। उसके बाद 1872 में जेडी बेगलर, जो यहाँ के लोकल सर्वेयर बनाए गए थे कनिंघम द्वारा, सर्वे करने के लिए पूरे ये बिहार रीजन का, उन्होंने बोध गया पर भी काफी अच्छा काम किया है। तो उन्होंने एक टेम्पल साइट 12 का ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं इसमें, इस एरिया को ऑपरेट किया था जानने के लिए कि आखिर यहाँ है क्या। और ये बड़ा अजीब एक संदर्भ मिलता है कि इसका उत्खनन उन्होंने उस समय के जो युद्धबंदी थे, जो प्रिजनर्स थे, उनको इन्वॉल्व करके इसका एक्सकवेशन किया था। उन्होंने अपने ये रिपोर्ट में इस रेफरेंस को देते। आज 2000 तब से लेकर के 2021 तक कई फेजेस में यहाँ आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकैवेशन का काम हुआ। जॉन मार्शल के टाइम में जब हेरिटेज बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स का कंजर्वेशन का पॉलिसी बना, मैनुअल बना, उसके बाद फिर इसका रेगुलर कंजर्वेशन स्टार्ट हो जाता है। आज नालंदा का जो एरिया है वो आपको 48 एकर्स एरिया में, सॉरी 48 नहीं, 24 हेक्टेयर एरिया में है, जिसमें विभिन्न फेजेस के एक्सकैवेशन के बाद 24 हेक्टेयर्स में 13 हेक्टेयर्स का जो एरिया है वो एक्सपोज्ड एरिया है, जो नालंदा रूइंस के रूप में देखा जाता है। इसके पहले कि हम लोग प्रारंभिक जो काम हुए हैं इसका और उसका जो स्केच है नालंदा के बारे में, आप यहाँ देख सकते हैं। दिस प्लान, स्केच प्लान is published in one of the report of Alexander Cunningham, और इसमें आप नालंदा का डिफरेंट जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड अदर जो सेटअप्स का जो सेटलमेंट है उसका बखूबी उन्होंने दिया है। उस समय के जो वाटर मैनेजमेंट का कैसा सिस्टम था उसका भी सारा बताया है। ये सारे पोखर्स, तालाब भी उन्होंने इसमें बताए हैं, और ये सारे माउंट्स का सेटअप कैसा था ये सारे बताए हैं। और ये प्रेजेंट गूगल अर्थ व्यू आपको दिखा रहा है। और लगभग बहुत सारे उस समय जो ये स्केच में हम देखते हैं उस समय के अभी भी ये सारे पोखर तालाब भी हैं। जैसे ये गिद्धि पोखर से टॉप वाली से आप तुलना इसकी, फिर ये पास का ये है
सरोवर, उसके साथ में फिर उसके नीचे ये है सरोवर, और ये सारे आपको बैक साइड के भी वाटर बॉडीज हैं, इनके स्केचेस से सारे मिलते हैं। और ये बड़ी पॉन्ड जिसको आप जिन्होंने भी नौ नालंदा महाविहार डिंग यूनिवर्सिटी को देखा होगा, उसके सामने ये तालाब आज भी है। और ये हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी का एक्सपोज्ड रिमेन्स है। तो हम देखते हैं कि 150 साल पूर्व जिस प्रकार का यहाँ आर्कियोलॉजिकल सेटअप था, उसके बहुत सारे सेटलमेंट आज भी अस्तित्व में हैं। और नगरीकरण का तो अपना उसका विकास का स्वरूप है, और इसमें बहुत सारे साइट से धीरे धीरे इंक्रोचमेंट भी हो रहे हैं, उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। जो वर्तमान बड़गांव है, मैं परिचय करा देना चाहूँगा कि यह जो स्थल है ये बड़गांव के ग्राम के अंतर्गत आता है। बड़गांव मीन्स बड़ा गांव, ये बहुत पहले ही से रेफरेंस में है। तो ये नालंदा का हम 150 साल पहले का सेटलमेंट पैटर्न देखते हैं, और ये अभी आज के देखते हैं। अब हम आते हैं इसके अनर्थिंग पर कि कैसे ये एक्सपोज हुआ। इससे पहले का फोटोग्राफ हमारे पास नहीं उपलब्ध हो सका है, फिर भी एक कल्पना कर सकते हैं कि 700 वर्षों का जब यूं ही वीरान पड़ा कोई इतना महत्वपूर्ण साइट जब होगा, उसके ऊपर कितने सारे वेजिटेशन ग्रोथ हुए होंगे। बड़े बड़े कोई 200 300 सालों का भी, 100 सालों का भी होगा, एंड छोटे छोटे झाड़ियां भी होंगी। और आप जानते हैं कि नालंदा एक ऐसा साइट है जहां पर जो ब्रिक का इम्प्लीमेंटेशन है, जो मैशनरी वर्क है, वो दुनिया के किसी भी पुरातात्विक स्थल जहां पर अगर ब्रिक के मैशनरी वर्क की अगर बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैमाने पर यहाँ पर उपयोग हुए हैं। और जब ये वीरान पड़ गया, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया, तो हमको ऐसा रेफरेंस मिलता है कि यहाँ लोग दूसरी जगह से, बिहार के और कोने कोने और दूसरी जगह से भी यहाँ से लोग काम के लिए, तो उस कड़ी में भी बहुत सारे जो इसके स्ट्रक्चर होंगे वो डिस्ट्रक्ट हुए होंगे इस माइनिंग के क्रम में। तो ब्रिक का भी बहुत बड़ा माइनिंग था। तो दिस फोटोग्राफ इज शोइंग द ऑनगोइंग एक्सकैवेशन ऑफ 1916। और ये एक्सकैवेशन जो है, उस समय के जो एक्सकैवेटर थे डीबी स्पूनर, बहुत फेमस वो एक्सकैवेटर थे, क्योंकि उन्होंने पाटलिपुत्र का कुम्हार का भी एक्सकैवेशन किया था। तो ये एक्सकैवेशन उन्होंने उस समय रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जो फंड कंट्रीब्यूट किया था, उसके फंड से ये काम शुरू किया था। और तब से लेकर के 1937-38 तक कंटिन्यूअस एक्सकैवेशन चलता रहा इस साइट पर। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि किसी भी पुरातात्विक स्थल का जो उत्खनन का इतिहास है, जो खोज का इतिहास है, वो नालंदा अपने आप में एक अलग स्वरूप प्रस्तुत करता है। क्योंकि आप सोचिए कि 1812 फ्रांसिस बुकनन के विजिट के बाद आज 2021 के समय में लगभग 225 वर्ष के आसपास हो गए, इसका अनुसंधान का इतिहास बन चुका है। था जो मोनास्टिक सेल के नाम से हम लोग जानते हैं इसको, जिसमें लिखा था श्री नालंदा महाविहार री आर्य भिक्षु संघ। और ये जो है नालंदा, यही वह प्राचीन महाविहार था जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने और बाद में पाल और उसके पहले हर्ष के समय में विभिन्न शासकों ने जो प्रश्रय दिया था, और जो 200 ग्रामों के राजस्व के आधार पर जिसका प्रबंधन चलता था। ये मोनास्ट्री मिलने के बाद लोगों में उत्सुकता बढ़ गई, और फिर लोग समझ गए कि यस, दिस इज द सेम प्लेस which can be identified with ancient institution, that is the
एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी। ये नालंदा म्यूजियम में प्रिजर्व कर रहा है आज की डेट में। बहुत सारे सैकड़ों सील मिले हैं। 1937 तक 37 तक के एक्सकैवेशन जो थे वो सिर्फ इस मैप में आप जो देख रहे हैं इस पेरिफेरी तक हुए थे। तो ये रेड एंड ब्लू एरिया है, इतना मीन्स 1916 से लेकर के 1937 तक के एक्सकैवेशन में 11 विहार मेजर मतलब ये मोनास्ट्री का एक्सकैवेशन हो चुका था और आपको 5 मेजर टेम्पल्स एक्सकैवेट हो चुके थे। और उसके बाद जो थर्ड फेज में एक्सकैवेशन हुआ वो 1972 से लेके 1984 तक हुआ, जिसको एक्सकैवेशन ब्रांच के पटना द्वारा किया गया था, जो सराय टीला पर यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं साधन पेरिफेरी में, यहाँ पर हुआ था। तो इस हिसाब से आज के समय में नालंदा का जो भौतिक अवशेष है, पुरातात्विक जो उसका संरचनात्मक अवशेष है, वह 6 महत्वपूर्ण आपको स्तूपा चैत्य या मंदिर के स्वरूप में है और 11 विहार के स्वरूप में है। मैं यहाँ पर एक चीज आगे के समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहूंगा कि नालंदा जो साइट है, एक्सकैवेटेड साइट, इसका जो अलग अलग जो मोनास्ट्री हैं वो सारे मोनास्ट्री का जो नामकरण किया गया है एज पर एक्सपोजर, सीक्वेंस ऑफ एक्सपोजर। जो पहले एक्सकैवेशन में मिला उसका नाम साइट 1 दे दिया गया, फिर दूसरे कड़ी में जो मिले उसको साइट 2 दे दिया गया, ये टेम्पल साइट 2 है, और उसके बाद फिर ये टेम्पल साइट 3 है। और फिर रेगुलर एक्सकैवेशन जैसे जैसे एक्सपोज होते गए वैसे वैसे सारे साइट का नाम दे दिया गया। तो यहाँ हो गया मोनास्ट्री 1, इसके साथ 2 मोनास्ट्री मिले, 1A एंड 1B, क्योंकि इसी के साथ लगे हुए थे। और उसके बाद फिर ये टेम्पल साइट बाहर के पेरिफेरी में मिला, टेम्पल साइट 2, उसके बाद फिर 3 एंड उसके बाद यहाँ से रेगुलर उन्होंने एक्सकैवेशन शुरू किया, मोनास्ट्री 4 एंड उसी के नीचे मोनास्ट्री 5 था, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11 मोनास्ट्री क्लियर थे। इसके जो रेजिडेंशियल स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजी के जो स्वरूप है उसमें हम देखते हैं कि कमरों में किस प्रकार का अरेंजमेंट था या एक मोनास्ट्री में किस प्रकार का अरेंजमेंट था, उसमें हम देखते हैं। अगर पूरी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये जो वेस्टर्न जो एरिया है ये सारे चैत्य या टेम्पल का अरेंजमेंट था एंड ईस्टर्न लोकेशन में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था, मीन्स एक सेक्रेड जोन था और एक रेजिडेंशियल जोन था, और ये अलग अलग फेज की वजह से ये अलग है। ये फोटो हम लोग पहले देख चुके हैं, इस तस्वीर को रेगुलर कहा ये कैसे एक्सकैवेट किया। इसका जो स्वरूप है हमको महाबोधि टेम्पल के स्वरूप से इसका आर्किटेक्चरल पैटर्न मिलता है। अब हम आते हैं बिफोर एक्सकैवेशन का। अब मैंने अभी बता दिया कि इसका जो मोनास्ट्री या बिल्डिंग का जो नाम है वो साइट नंबर के अनुसार नाम है। तो ये टेम्पल साइट 3, जिसको आप किताबों में पब्लिश जो फोटोग्राफ देखते हैं नालंदा का, जो टेम्पल साइट 3 का था, जो एनसीईआरटी में भी या किसी भी बुक में मुख्यतः इसी व्यू को दिखाया जाता है, उसका बिफोर एक्सकैवेशन कैसा स्वरूप था टेम्पल साइट 3 का। ये 1916-17 में एक्सकैवेशन जब शुरू हुआ कंटिन्यू, तो ये एक्सकैवेशन होने के बाद का ये स्वरूप है। 17-18 का है। धीरे धीरे नालंदा का रिमेन्स, ये टेम्पल साइट 3 का आपको वेस्टर्न साइड में भोटिव स्तूपास के क्लस्टर्स यहाँ मिले हैं। ये टेम्पल साइट 3 का ही है, जिसमें स्टको का रिमेन्स, स्टको में चूना मिट्टी से बने हुए, आगे हम लोग आएंगे देखेंगे उसको। उस समय जब एक्सपोज हुआ तो इनिशियली इम्पोर्टेंट जो आर्किटेक्चरल जो पोर्शन था या फिर स्कल्पचरल जो पार्ट था उसको लोगों ने प्रिजर्व करने के लिए ये मेथड फॉलो किया था। ये भी एक्सकैवेशन का 3, ये हमारा नालंदा म्यूजियम में
नागराज की मूर्ति प्रिजर्व कर रहा है। ये साउथ ईस्ट कॉर्नर होगा टेम्पल साइट 3 का, और एक दूसरा यहाँ बुद्ध का ये तस्वीर है, इमेज है। और ये मोनास्ट्री एरिया का एक्सकवेशन का चल रहा है। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द अनर्थिंग ऑफ द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी। इसी सेंस में हम लोग समझेंगे इसको कि कैसे अनर्थ किया गया इसको। ये मोनास्ट्री नंबर 1 है। जो लोग विजिट किए होंगे वो जानते होंगे यहाँ पर जो ग्रैंडरी मिला है, जहाँ से बर्न्ट राइस मिला है, वो उसका स्वरूप कैसा था। पहले कुआं का भी अरेंजमेंट हर एक मोनास्ट्री के प्रांगण में होता था। ये और डेवलप होता चला गया। 25-27 के समय में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। 25-27 तक ऑलमोस्ट ये एक्सपोज हो चुका था। इसमें ये सारे डिफरेंट हमको इसके ऑक्यूपेशनल लेवल्स भी अब दिखाई पड़ रहे हैं। ये दूसरे टेम्पल साइट 3 से सटा हुआ 1B का मोनास्ट्री का ये है, उसका स्वरूप है। ये मोनास्ट्री 1 के अंदर का जहाँ पोडियम है, कोर्टयार्ड के अंदर अर्लीस्ट लेवल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी अलग दृश्य है उसी का। ये पोडियम एक्सपोज हुआ था, उसका इनिशियल स्वरूप है। कैसे वो लोग कंजर्व करते थे अनर्थिंग का हम लोग अभी कुछ अंश को देखा है। अब कंजर्व भी साइमल्टेनियसली चल रहा था, क्योंकि उस समय पॉलिसी ऐसा था कि ब्रिक, चूंकि इसका मैशनरी सिस्टम ऐसा है कि इसमें मड मोटार को पेव्ड किया गया है, तो अगर लंबे समय तक एक्सपोज करके छोड़ देंगे तो मानसून सीजन और उसके बाद जो दूसरे सीजन आएंगे तो उसमें वेजिटेशन ग्रोथ होगा, रूट पेनिट्रेशन होगा, तो फिर वो कोलैप्स होने के चांस होंगे। तो इसलिए उसी साथ साथ में एक्सपोजर के साथ साथ ये लोग कंजर्व भी करते थे। और जब जॉन मार्शल का कंजर्वेशन का ये मैनुअल बन गया कि हमको इसमें स्पेशल साइज ब्रिक भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो पार्ट कोलैप्स हो गए हैं, हमको पता है कि यहाँ से ये पार्ट कोलैप्स हो गया, तो उसी जगह पर उसके ईंट टूटे हुए रहेंगे, तो उसके फेस को हमको मिलाने के लिए स्पेशल साइज ब्रिक भी बनाने पड़ेंगे। तो वो लोग स्पेशल साइज ब्रिक भी साइड पर ही बनाते थे। ये आर्काइवल फोटोग्राफ भी हम लोगों को बतला रहा है इसके कंजर्वेशन के स्वरूप का। ये आप देखिए उसके प्रक्रिया को, ब्रिक मेकिंग प्रक्रिया है कैसे है। जो पहले जो चिमनी भाटा, आजकल चिमनी बड़े बड़े बनते हैं, फर्निश बनता है, लेकिन वो लोग इसी प्रकार के भाटे लगाते थे, साइड के ऊपर ही लगाते थे। ये सारी तस्वीर बयां कर रहा है नालंदा के हर एक पहलू का। आप इसमें देख रहे हैं 1922-23 का है। इस फोटोग्राफ में आप सराउंडिंग लैंडस्केप को समझने में सहूलियत होगी कि कैसा उस समय था, किस प्रकार का बसावट था आसपास में। ये टेम्पल साइट 2 का ऑनगोइंग एक्सकैवेशन है जो 1916-17 हुआ था। यहाँ पर ये जो खड़े हैं ये डीबी स्पूनर है। ये एक्सकैवेशन चल रहा है, उसका 2016 का मैंने फोटोग्राफ यहाँ लगाया है। ये जो पैनल से निकल रहे थे एक्सकैवेशन में, डाडो पैनल, इतना ही स्वरूप उसका बचा हुआ है आज। ये ऑनगोइंग कोर्टयार्ड के अंदर का ये चल रहा है। अभी आप बैक साइड में यहाँ टीला देख सकते हैं। ये मोनास्ट्री 1 के अंदर की व्यवस्थाएं हैं। ये वर्तमान स्वरूप में 2021 का आप देखिए, 2020 में कैसे ये था, इधर का ये भाग छुपा हुआ है। और यही भाग जब एक्सपोज्ड हुआ था, जिसको ग्रैंडरी स्टोरेज के रूप में हम लोग जानते हैं मोनास्ट्री 1 के अंदर में, उसका स्वरूप ऐसा था। और इसके बाद में जब इन लोगों ने इसको कंजर्व किया तो ऐसा था। बाद में फिर इसमें विजिटर्स एक्सेस के लिए इसको लोगों ने ओपन कर दिया। तो विजिटर्स या हम आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन ये अभी का अगर तस्वीर देखेंगे और पुराने तस्वीर देखेंगे तो एक कंपेरेटिव हमको आइडिया मिलेगा कि इसी स्ट्रक्चरल रिमेन्स को हम कैसे किस रूप में समझ सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्टेयरकेस है और कैसा स्वरूप था। ये मेन जो राइट साइड लोअर कॉर्नर में आप देख रहे हैं फोटोग्राफ, इसमें ये मेन एंट्रेंस आज जो जाते हैं, जहाँ पर नीचे था, नीचे में कोई हमको स्कल्पचर या इमेज नहीं मिले, बट सर्टेनली देयर मस्ट हैव सम इमेजेस ऑफ आइदर बुद्धा और अवलोकितेश्वर और एनी अदर।
ये सराउंडिंग लैंडस्केप आप नालंदा का देखिए 1919-20 का है, कैसा स्वरूप था। यहाँ पास में ये सराय टीला दूर से दिख रहा है, मोनास्ट्री 1 का स्वरूप दिख रहा है। तब ये सारे एक्सपोज नहीं हुए थे, 1A का एरिया भी एक्सपोज नहीं हुआ था। और इसमें आप देख सकते हैं इसके सेल्स पूरी तरह से ऊपर से एक्सपोज नहीं हुए थे, कोर्टयार्ड नहीं हुए थे। ये 19 ये पार्ट थोड़ा सा कंजर्व हुआ है, ये पार्ट उस इधर कंजर्व हुआ है। 1918 में ऐसा एनुअल रिपोर्ट में उस समय का रेफरेंस मिलता है कि हेवी मानसून में ये पार्ट गिर गया था, फिर लोगों ने तुरंत रिस्टोर कर दिया। तो ये सारी कंजर्वेशन का इनका क्रम चल रहा था। क्या व्यू ऑफ मोनास्ट्री 1, ये सारे हम लोग देख रहे हैं। स्लाइड आ रहे हैं डॉक्टर राजू? हेलो हेलो, Yes, yes, हाँ, over. हाँ, सर। ओके, थैंक यू। तो ये भी आप स्वरूप देखिए, मोनास्ट्री साइट 4 का कैसा स्वरूप था। अभी इस पर से लोग क्लाइम करते जाते हैं यहाँ, और इधर से हम लोग एंटर करके आते हैं, तो कैसा स्वरूप था इसका। ये ऑनगोइंग कंजर्वेशन वर्क चल रहा है, सारे मजदूर लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये ऑनगोइंग एक्सकैवेशन का स्वरूप देखिए। ये कोर्टयार्ड, सेंट्रल कोर्टयार्ड का वन साइड में, ये जो आप लेफ्ट साइड का रो देख रहे हैं, एक्सकैवेटेड ट्रेंचेस का रो, ये सारे रो हैं आपके स्टार्टिंग फ्रॉम टेम्पल साइड 3 के साइड से ये चढ़ करके ऊपर जो सबसे ऊंचा जो मैग्निफिसेंट जो स्ट्रक्चरल पोर्शन है, उस पर से 14th के साइड में ये फोटोग्राफ लिए गए हैं। और ये सारा जो आपका अभी अनएक्सपोज जो एरिया है, ये सारे मोनास्ट्री का पोजीशन है इधर हुआ है। और ये प्रेजेंट बड़गांव विलेज का सेटअप है। तो इधर अभी भी कंटूर हमें दिखता है। अब तो पूरा सेटअप हो गया, तो ये और भी ये कंटिन्यू करना चाहिए यहाँ पर। और लोगों ने बताया पहले के सर्वे में भी और भी था। इंस्टीट्यूट डिस्कवरी डेडी स्पूनर को जब ये सामंत भद्रावलोकितेश्वर का मूर्ति टेम्पल साइड 3 के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के श्राइन में मिला था। और ये फेमस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन देवपाल देव का है, जो अभी नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है, उसका उस समय का ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। इसका एक्सकैवेशन जब हो रहा था, और साइमल्टेनियसली जो एक्सकैवेटर्स थे वो इतने, जैसे कि हम लोग वो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं कि हमको कितना आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को एक्सपोज करने के पहले उन्होंने पूरा कंटूर बना रखा था। ये आर्काइवल फोटोग्राफ 19 कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं हुआ है उस टाइम का ये है, क्योंकि 1872 में जो एक्सकैवेशन हुआ था वो पार्टली टेम्पल साइट 14 के पास में वो थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ था, जो आपको जेडी बेगलर ने ये किया था। उसके बाद हमको ये सारा जो आर्काइवल ड्राइंग्स हैं, ये भी हमें बताते हैं कि नालंदा का एंशिएंट स्वरूप कैसा था। वो विगत एक्सपोजर के बाद 100 ईयर्स में भी आज भी रिटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये सारी भी बातें। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट कंस्टेंट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर आर्काइवल फोटो देखिए। यहाँ पर एंटीक्वेरियन रिमेन्स जो रिपोर्टेड है वो 3rd सेंचुरी BC से मिलता है, लेकिन आज के डेट में जो विजिबल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड्स है। गुप्ता पीरियड से ही हमको देखने को मिलता है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने यहाँ 3rd सेंचुरी BC के भी एविडेंस निकाले हैं। इसका हमारे पास में रिपोर्ट में एक एविडेंस मिलता है और दूसरा इस आर्काइवल ड्राइंग में मिलता है। यहाँ पर आप समझिए ये प्लान है। पहली बार जो टेम्पल साइट 3 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर स्तूपा का इनलार्जमेंट सुंगो के टाइम में ये हुआ था, उसी को फर्दर इनलार्ज किया। और उसके बाद कुषाण पीरियड ये लोग कोर पॉइंट से डेविएट होकर के ये अलग यहाँ बना देते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग 3rd स्तूपा। उन्होंने आइडेंटिफाई किया 20 मतलब न्यूक्लियर पॉइंट को, और ये सभी को एक में कॉम्प्रोमाइज करते हुए अर्ली जो स्तूपा थे एंड कुषाण पीरियड का ये एक सेंट्रल कोर पॉइंट बनाया। उसके बाद फिर पंचायतन शैली का ये टेम्पल का चैत्या का ये एक स्वरूप दिया।
और गुप्ता पीरियड के 2 यहाँ सक्सेसिव फेजेस मिलते हैं, जो आज हमको स्टको पैनल देखने के लिए मिलता है, जो नालंदा के टेम्पल साइट 3 में। इसमें आप सेक्शन कटिंग में भी देख सकते हैं कि सारे स्ट्रक्चर एलिमेंट्स कैसे उन्होंने दिखाया है। सो ड्राइंग इज ऑल reference for understanding our archaeological evidence। ये 1930 तक नालंदा का इतना भी एरिया बचा हुआ था, टेम्पल साइट 12, टेम्पल साइट 13 एंड 14। एक मोनास्ट्री का स्वरूप आप देखिए कैसा था, अभी हम लोग उसमें चर्चा कर रहे थे कि एटलीस्ट ईच ऑफ द मोनास्ट्री वाज ये वेल। यहाँ पर आप कोना में एक देख रहे हैं फॉर वाटर फैसिलिटी। उसके बाद फिर एक मेन सैंक्टम होता है, जो कोई भी अगर एंट्री करता है अपने रेजिडेंट एरिया में, मॉन्क हो आचार्य हो, उसको सबसे पहले कैसे जाएगा, वो मोनास्ट्री के यहाँ पर जब एंट्री करता है सामने उसको दिखाई देगा एक सेक्रेट श्राइन, जो सैंक्टम है। यहाँ पर बुद्ध या उनके बुद्ध के और भी दूसरे अवलोकितेश्वर या किसी का भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास में किसी के एविडेंस नहीं मिले हैं। उसके बाद बीच में भी कुछ बाद में लेटर इंक्रोचमेंट हुए, सो सब्सिडियरी श्राइन लोग बनाने लगे, और ये ओपन कोर्टयार्ड था और ये पिलर वेरंडा था, और पिलर वेरंडा के थ्रू सभी सेल्स मतलब ओपन होते थे। हमारे पास जो आज तक के जो काउंटेड एविडेंस है उसमें 33 से लेके 37 सेल्स तक प्रत्येक मोनास्ट्री में मिले हैं, और स्टेयर केसेस भी एक कॉर्नर में बने हुए हैं। तो एटलीस्ट वी कैन इमेजिन दैट ईच ऑफ द मोनास्ट्री मस्ट हैव एटलीस्ट डबल स्टोरी। ये टेम्पल साइट 13 का आप यहाँ पर देख रहे हैं, बिफोर एक्सपोजर है, और उसके सामने स्मेल्टिंग फर्नेस का एविडेंस मिला था। कि हम जानते हैं कि नालंदा कला का भी, शिल्प का भी बहुत बड़ा केंद्र था, और ब्रॉन्ज यहाँ बनाने के, ब्रॉन्ज की कलाकृतियां बनाने के बहुत बड़ा एक प्रकार का ये संस्था था, जैसा कुर्किहार में मिलता है। तो यहाँ पर हमको स्मेल्टिंग फर्नेस मिल रहा है, साथ में मेटल ओर्स भी मिले हैं एक्सकेवेटर को। और ब्रिटिश लोग जब एक्सकेवेशन कर रहे थे तो उन लोगों ने मैनेजमेंट के लिए, एक्सकेवेशन मैनेजमेंट के लिए ट्रैक भी बना रखा था। सो ये ओल्ड फोटोग्राफ हमें बता रहे हैं कि उनके कैसे एक्सकेवेशन अनर्थिंग का ये प्रक्रिया चल रहा था। उस समय जो एक्सकेवेशन में फाइंडिंग्स हो रहे थे एंटिक्विटीज के, तो यहाँ पर उन्होंने एक शेल्टर बनाया था, जिस शेल्टर में से आज हम लोग अभी टॉक कर रहे हैं, नालंदा म्यूजियम के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं। तो 1922-23 तक का ये कलेक्शन इस रूप में लोगों ने रखा था। कि आपको जानना चाहिए कि नालंदा म्यूजियम जो है आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम के रूप में 1917 में ही ऑलरेडी ये इस्टेब्लिश हो चुका था, जस्ट आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ एक्सकैवेशन फ्रॉम 1916। एक ही साल के बाद लोगों ने इसके महत्व को समझा कि हमको नहीं जाने देना चाहिए। आफ्टर सारनाथ, दिस वाज द सेकंड आर्कियोलॉजिकल साइट म्यूजियम। यहाँ पर मुराल पेंटिंग के भी एविडेंस मिले हैं, भित्ति चित्र जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सराय माउंड में मिले हैं। ये फोटोग्राफ्स अब रेयर हो चुके हैं, ये सारे डिसअपियर हो गए पेंटिंग्स, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एविडेंस। ये हमारा लास्ट एक्सपेडिशन है इन टर्म ऑफ, आप कह सकते हैं, एक्सकैवेशन। ये साइंटिफिक क्लियरेंस के रूप में था, ये फुल फ्लेज एक्सकैवेशन नहीं है। साइंटिफिक क्लियरेंस उसे कहते हैं कि जो पार्ट का हमें पहले से जानकारी होता है कि इसके सराउंडिंग में इस टाइप के एविडेंस मिलने के चांसेस है, तो वहाँ हम माइन्यूटली, ताकि कोई चीज़ें डिस्टर्ब नहीं हो, हम सिर्फ साइंटिफिकली क्लियर करते हैं। ये अभी बीएसयू में ही है, डॉक्टर सचिन तिवारी, उन लोगों ने यहाँ पर काम किया था 2011-12 में, उन्हीं लोगों ने एक्सपोज किया था। तो आप देख सकते हैं कि ये सबसे लास्ट एक्सपेडिशन है, यहाँ तक ये भरा हुआ था। तब लोग जानते नहीं थे कि द सेम थिंग we were understanding that these are the votive stupa, but after exposure of this deposit we have got one of the evidence of panchayatan small temple। ये एक कंजक्शनल प्लान जो प्रसिद्ध ब्राउन ने दिया था नालंदा के टेम्पल साइट 3 का, ये गुप्ता पीरियड के जो लास्ट फेज था स्टको का फेज का, उसका है ये प्लान।
तो यहाँ पर मैंने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि इसी को कट किया गया, इसके ऊपर फर्दर लार्ज एक्सपेंशन किया है, लोगों ने बनाया है। नालंदा में यहाँ पर एक फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ और कई भी ऐसे सारे एविडेंस हैं जो ये चीज को प्रूव करते हैं कि नालंदा ही नहीं, पूरे बुद्धिस्ट जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं, उस साइट्स पर आप देखेंगे कि देयर वाज सेंस ऑफ प्रिजर्विंग द पास्ट इन पास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सब्सिक्वेंट जो पैटर्न थे, या जो लोग फिर इनको इनलार्ज कर रहे थे या कोई नई सेटलमेंट कर रहे थे, तो पहले की चीजों को कुछ डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, उसी के ऊपर फर्दर इनलार्ज कर रहे थे, इनकेस करके। और इस यहाँ के फोटोग्राफ में चीजें दिखाई देती है, कैसे इन्वेड हो रहा है अर्ली जो बुद्ध स्तूपा है, उसके ऊपर फर्दर ये लोग इनलार्ज कर रहे हैं। तो ये सारे स्टको पैनल्स हैं, गुप्ता पीरियड के ये सारे एविडेंसेस हैं। मैं यहाँ ब्रीफली बता दूंगा कि जो ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री है नालंदा का, वो स्टार्ट होता है वैसे तो प्री मॉडर्न पीरियड से, लेकिन नालंदा के पेरीफेरी में मैं पहले भी बताया कि यहाँ 3rd सेंचुरी BC से ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है। लेकिन जो सराउंडिंग एरिया में एक्सकैवेशन हुआ, जैसे जाफरडी में हुआ, दामन खंदा में हुआ, बेगमपुर में हुआ, मुस्तफापुर में हुआ, डिफरेंट मतलब इसके जस्ट मतलब इमीडिएट सराउंडिंग लोकेलिटी में, तो वहां से एनबीपी का होराइजन मिलता है। और एविडेंस हमको 6th-5th सेंचुरी BC के भी मिलते हैं। इट मींस जो लीजेंड है, जो हियरसेज है, जो लिटरल रेफरेंस है, जो स्क्रिप्चरल रेफरेंस है, उस टाइम का आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स भी यहाँ है। ये फुल प्रूफ एविडेंस हम लोगों के पास में है। फिर मॉडर्न पीरियड से तो कंटिन्यूअस सीक्वेंस मिलता है। तो ये एक ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री के जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग इस रूप में समझते हैं कि यहाँ पर 9 मतलब किसी फेज में ऑक्यूपेशन रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री मॉडर्न टू द मिडिएबल पीरियड। मिडिएबल पीरियड में सेटअप क्या था, लोग जस्ट ऐसे ही साधु संत जैसे किसी जगह में वीरान पड़ गया तो कोई रह गया, वहां पर धुएं रमाते हुए बस उनके सेटअप मिलते हैं कि कोई ब्रिक को ऐसी छोटा सा जगह में झोपड़ी बना करके रख रहा है, और लिटरल रेफरेंस के बेस पर उसी चीज को हम लोग समझ पाते हैं। बाकी सब सीक्वेंट पीरियड में किस किस पीरियड में कौन से मोनास्ट्री का ऐड हो रहा है, किस टाइम में लोग बना रहे हैं, ये सारा हमें लिटरल रेफरेंस में भी मिलता है। हम बहुत ब्रीफली जाएंगे ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेशन, क्योंकि यही मोनास्ट्री 1 है जिसमें आपके स्टूडेंट्स आए थे 2 साल पहले, पैंडेमिक के पहले आए थे, और काफी इंटरेस्ट लेकर के उन्होंने देखा था नालंदा को। तो जब हम कहते हैं कि 9 सक्सेसिव लेवल ऑफ ऑक्यूपेशन एक मोनास्ट्री का था, इसका मतलब हुआ कि कई स्ट्रक्चरल फेजेस तक एक ही प्लान पर लोगों ने उसको रीयूज करता रहा यहाँ पर। और कारण अर्लियर फेज के बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे। हमको इनके डिक्लाइन का एविडेंस तो बहुत पहले ही से मिलना शुरू हो जाता है, प्री इस्लामिक पीरियड से ही मिलना शुरू हो जाता है स्ट्रक्चरल डिक्लाइनिंग में। तो यहाँ पर प्री पाल के से लेकर के एंड 12th सेंचुरी तक 9 सक्सेसिव फेजेस हैं, जो सारे फेजेस को आप उनके डिपॉजिट्स हैं, ये उनके आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेशन को बता रहा है। हम आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट को ये चीजें भी जानना चाहिए कि अभी तक के आर्कियोलॉजी के सब्जेक्ट में हमें हमारे प्रोफेसर्स पढ़ाते रहे हैं। Mortimer Wheeler, who has introduced the concept of a stratigraphy for understanding cultural sequence of the site. लेकिन हमारे पास में कि मॉर्टिमर व्हीलर का टाइम आपको 1940 के आसपास में 40-44 के आसपास है, लेकिन नालंदा मोनास्ट्री 1 का एक्सकैवेशन तो 1920s में ही हो गया है। इट मींस आवर एक्सकैवेटर लाइक हिरानंद शास्त्री जी, those were very much involved in exposing this Nalanda monastery site 1. He has introduced one of the evidence of all the stratification in monastery 1. तो यहाँ पर हमको देखने giving stratification was been prevailing prior to the concept is introduced by the Mortimer Wheeler. ये अब हम बहुत ब्रीफली जाएंगे, काफी टाइम हो रहा है।
मोनास्ट्री 1 का ये डिफरेंट जो ऑक्यूपेशनल लेवल्स हैं उसको हम लोग समझ पाए हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के आधार पर, और जो यहाँ से मटेरियल रिट्राइव हुए हैं ड्यूरिंग एक्सकैवेशन कि 9 जो सक्सेसिव जो लेयर्स हैं, 9 जो कल्चरल, इसको स्ट्रक्चरल पीरियड के रूप में जाने, लेकिन कल्चरल ही हम लोग ऐसे आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन में समझते हैं कि किस किस ऑक्यूपेशन में क्या क्या एविडेंस मिले हैं और कौन सा उसको लेयर रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन से कल्चरल या डायनेस्टिक पीरियड ये कर रहा है। तो इस प्रकार से हम नालंदा को होलिस्टिकली समझने के लिए आज 200 साल के बाद अभी इस रूप में हम लोग समझ पा रहे हैं। ये इसके 2 सक्सेसिव फेजेस हैं, एक जो है अर्ली पाला का है और दूसरा पाल का है। 1B का आपको यहाँ पर है जो अर्ली पाल का है, फिर पाल का मिलता है इसमें। ये सारे मोनास्ट्री का सेटलमेंट है। ये 1B है, इधर में टेम्पल साइट 3 है, 1A है एंड मोनास्ट्री 1 है। ये मोनास्ट्री 1A का है, ऊपर क्लाइम करके जाते हैं, वहाँ चंद्रशिला का भी एविडेंस मिला है जिसको आर्किटेक्चर में एंशिएंट आर्किटेक्चर में सेक्रेड थिंग माना जाता था, पवित्र थिंग माना जाता था। ये टेम्पल साइट 2 में 3 सक्सेसिव फेजेस मिले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द 6th सेंचुरी से लेकर के एंड 7th सेंचुरी तक के यहाँ मिले हैं। इसके दूसरे फेज का फोटोग्राफ देख सकते हैं। यही जो टेम्पल साइट 3 का है, इसका सक्सेसिव जो लेवल्स हैं वो 7 है, जिसमें 4 लेवल जो है वो आपको प्री मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट का लेवल है, जिसमें मौर्य पीरियड का है। इसमें हम लोग यहाँ पर अभी जस्ट हम लोग समझे थे, एक मौर्य पीरियड का है, दूसरा शुंगा पीरियड का है, तीसरा कुषाण पीरियड का है, और उसके बाद 3 जो है प्री मोनास्टिक एस्टेब्लिशमेंट का है, एंड चौथा से लेकर के 7th जो लेवल्स है ऑक्यूपेशनल लेवल्स अप टू द पाल, ये सारे मोनास्टिक पीरियड के टाइम का है। क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं, यहाँ ब्रिक मेजरमेंट का भी एविडेंस उन लोगों ने ये दिया था। कोर कटिंग के माध्यम से हमको टेम्पल साइट 3 के इनर पॉइंट के बारे में समझ में आया कि कैसे प्री मॉर्निंग टाइम का भी यहाँ ऑक्यूपेशन था। तो ये सारे एविडेंसेस हैं डिफरेंट फेजेस के। टेम्पल साइट 3 का 6th फेज में क्या क्या मिलता है हमको, बहुत डिटेल में है। मैं बता रहा था कि देयर वाज सेंस ऑफ प्रिजर्विंग द पास्ट इन पास्ट। आप देखिए कि एक स्तूपा को कैसे इनकेस कर रहे हैं लोग यहाँ, ये ब्रिक को, बट इसको डिसमेंटल नहीं किया, इसी को फिर केसिंग कर दिया इन लोगों ने। तो ये कितना बढ़िया एविडेंस है हमारे पास में। मोनास्ट्री साइट 4 में आपको 6th ऑक्यूपेशनल सक्सेसिव ऑक्यूपेशनल लेवल्स मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री पाल अप टू द ये पाला एंड पोस्ट पाल पीरियड तक। यहीं पर बताते हैं कि जो लास्ट जो मॉन्क था इसी के ऊपर कुछ जो लाइब्रेरी था जिसको हम लोग रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक के नाम से जो जानते हैं, यही मोनास्ट्री नंबर 4 था। इसका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी भी कुछ इस टाइप के हैं, बट आर्कियोलॉजिकली वी कैन फाइनली नॉट कंसीडर द थिंग। तो यहाँ पर हमको 15th सेंचुरी तक के एविडेंस मिलते हैं मोनास्ट्री नंबर 4 के ऊपर। इसमें डिफरेंट लेवल्स को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि कौन सा लेयर एंड कौन सा स्ट्रक्चरल पोर्शन किस लेवल का हो सकता। ये 4 सक्सेसिव ऑक्यूपेशनल फेज है, क्योंकि मोनास्ट्री 5 जस्ट इसके नीचे था, तो 4 भी इसके ऊपर कवर करा, इसीलिए ये 15th सेंचुरी तक ये जाता है। इसमें यहाँ पर मोनास्ट्री 5 जो इसके सेल्स जो है ये अलग से यहाँ से सेग्रीगेट होता है मोनास्ट्री 4 का। जिन लोगों ने नालंदा भ्रमण किया होगा उनको ये सारे देख करके बहुत आसानी से हो रहा होगा। और ये भी आपका मोनास्ट्री साइट 6 का है। यहाँ पर वेरी क्लियर east of the floor of monastery
ब्रिक फ्लोरिंग, इसमें आप ब्रिक का देख सकते हैं, एविडेंस भी मिला था, ऐसा इंस्टीट्यूट एविडेंस भी हमारे पास है। तो ये क्लियरली यहाँ पर दोनों लेवल्स क्लियर यहाँ दिखते हैं, नीचे के इसके ऊपर है। और नीचे के फेस में इस साइड में लोगों ने श्राइन बना रखा था, फिर ऊपर के फेस में इस साइड में बना दिया। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये कम्युनिटी किचन हट का भी एविडेंस यहाँ है। लोग बोलते हैं कि कम्युनिटी किचन का भी यहाँ पर 6 का अनदर व्यू है, यहाँ से क्लियर होता है। जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ रहा था, जो वेल था उसका लेवल भी मोनास्ट्री 7 में 3 सक्सेसिव लेवल है और वेरी क्लियरली एविडेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेवल 1 का ये से इतना कवर कर दिया, फिर पैरापेट वॉल जो था इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि पिलर बरंडा जो था इतना रेज कर दिया, इसको पैक कर दिया। लेवल 2 है एंड लेवल 3 है। तो ये मोनास्ट्री 7 में हमको बेटर एविडेंस मिलता है, और जो हमारे एक्सकेवेटर ने जो एविडेंस छोड़ रखा है वो ऑल 3 सक्सेसिव लेवल को यहाँ से हम लोग ब्यूटीफुली समझ सकते हैं अच्छे से। मोनास्ट्री 8 में 2 ऑक्यूपेशनल लेयर्स, पाल पीरियड का एंड सेकंड भी पाल पीरियड का ही लेटर फेज का है। एंड मोनास्ट्री 9 में इसमें हमको आपको विट्रिफाइड जले हुए का एविडेंस मिला है, जिससे बहुत जो इतिहास के व्याख्याकार हैं वो लोग तुलना करते हैं। जो जलने का एविडेंस है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के दौरान हुआ होगा, बट हम लोग आर्कियोलॉजिकली इसी चीज को उस रेफरेंस को फाइनली नहीं कंसीडर कर सकते हैं। वी हैव नो एनी इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। और जो ये लेबल है वो लेबल भी लंबा समय तक मतलब इसको यूज हो रहा है, तो किस पर्टिकुलर टाइम में ये हुआ होगा। बख्तियार खिलजी एग्जैक्टली अबाउट 1200 सी में यहाँ आए थे। तो ये लेबल क्योंकि पालों का लेबल है और ये 9th सेंचुरी से लेकर के और कंटिन्यू करता है आपको 12th सेंचुरी तक का, तो इसलिए हम ये कंसीडर करने में थोड़ा मुश्किल होगा कि उसी पीरियड का है या पहले है या और बाद का है। मोनास्ट्री 9 में 10 में 2 ऑक्यूपेशनल फेज है, पाल पीरियड के एंड पोस्ट पाल पीरियड के हैं। 10 का ये व्यू आप मोनास्ट्री 10 का देख सकते हैं। मोनास्ट्री आपका ये 11 का व्यू towards the north position. It has also revealed 2 successive occupational labels. अब हम आएंगे टेम्पल साइट्स के प्रति। ये टेम्पल साइट 12 का एविडेंस हम लोगों ने टेम्पल साइट 3 एंड टेम्पल साइट 2 देख लिया है। ये टेम्पल one of the magnificent setup in the cluster setup of the temples within the Vihara complex. इसमें आप देखते हैं बहुत सारे वोटिव स्तूपा साइड में मिलेंगे, जैसा कि टेम्पल साइट 3 के पास मिलता है। ये सारे वोटिव स्तूपा जो हैं वो डिफरेंट पीरियड्स के, मींस पाल पीरियड के ही। पाल पीरियड का बहुत लॉन्ग स्पैन है यहाँ, तो ये उनके एविडेंस मिलते हैं। इसमें 2 क्लियर कट मिले हैं। एक आपको 6-7 सेंचुरी सी से है, मींस प्री पाला एविडेंस है, एंड दूसरा पाल पीरियड का यहाँ पर मिलता है। यहाँ से आप फ्रंट से देख सकते हैं अर्ली फेज के जो स्टेप्स तो क्लाइंब कर रहे हैं आपको श्राइन की ओर नीचे से, जैसे जगती पर पहले चढ़ेंगे ऊपर, तो ये ऊपर का भी वैसे ही उसी को लोगों ने इनकेस करके फिर बना दिया। यहाँ ये कॉर्नर टावर है, यहाँ आप देखते हैं। टेम्पल साइट 14 का है ये एविडेंस। दिस इज द लास्ट मॉन्यूमेंट इन द प्रीमाइसेस अमंग द लिस्ट ऑफ द टेम्पल्स, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रिक के डेकोरेटिव एविडेंस भी मिले थे उस टाइम में। But the superstructure, all of the superstructure were found in ruins, and materials as per the proportion of the building, we could not be able to
ट्रेस, एंड इवन हम लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉन्ग समय तक यहाँ पर ब्रिक क्वेरी का चल रहा था, ब्रिक माइनिंग का प्रक्रिया चल रहा था, तो लोग उठा करके ले गए, तो हमें ऊपर का नहीं मिल सका। और प्रत्येक टेम्पल के अंदर में जो लास्ट टेम्पल साइट 3 है, उसके टॉप को छोड़ करके अगर नीचे देखें तो हमको दूसरे सारे मीन्स क्लोजल इमेज होगा या बड़े बड़े इमेज इसमें लगे होंगे, और दूसरी जगह में आप देखते हैं विक्रमशिला में भी मिलता है देखने के लिए। टेम्पल साइट 13 का सीक्वेंस में थोड़ा ये लेटर हो गया 14 से, 13 का अभी प्रेजेंट व्यू है। इसमें भी सिमिलर ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री है, 2 हिस्ट्री है यहाँ भी, प्री पाला एंड पाल पीरियड का। 14 का आपने जस्ट आप यहाँ पर देख लेंगे, ये है सराय टीला का जो लास्ट सीक्वेंस में जो नालंदा का एक्सकेवेशन में मिला था, जो 1974 से लेकर 84 के बीच में एक्सपोज हुआ। इसमें हम लोगों के बुद्ध का फिट मिला है यहाँ, और इसके अगर किसी आइकॉन का अगर प्रोपोर्शन को हम लोग कैलकुलेट करें, तो इसका अगर ये स्थानिक इमेज था, मीन्स स्टैंडिंग अगर ये इमेज था, तो ये अबाउट अगर ये होगा तो 70 फीट का ये इमेज होगा, 70 फुट। तो आप कल्पना कीजिए कि इसके जो सुपर स्ट्रक्चर होंगे और जितने भी टेम्पल्स हैं, उसमें सबसे अधिक मोटी दीवार जो श्राइन की जो आउटर ये जो दीवार है, सबसे मोटी दीवार इसी की है। So we can imagine that it was one of the magnificent temple, towering structure. तो आप कल्पना कर सकते हैं इसके बेस पर मंदिर। और हमारे पास विपुल श्री मित्र का एक इंस्क्रिप्शन प्रिजर्व कर रहा है म्यूजियम में, जिसमें ये बताते हैं, इसके जो एक्सप्लेनेशन करते हैं साइट का, जो प्रेज करता है कि 24 मीटर का यहाँ पर बुद्ध का इमेज था, लेकिन वो कांच से कलर पे बताते हैं। हो सकता है कि ये पेंटिंग किया गया होगा, उससे मानिए, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत बाद में ये मिला है। और पेंटिंग सेकंड फेज का है। फर्स्ट फेज में आप स्टोको का क्लोजर, ये स्टोको का इमेज जो आपने देखा, स्टैंडिंग इमेज का है, और ये 10th-11th सेंचुरी का मुराल पेंटिंग। And now after the exposure, Nalanda in the present day is seen in this shape. आप कल्पना कर सकते हैं कि what was the position about 100 years or about even prior to 100 years back of this site, and how the rigorous expeditions in terms of excavation and conservation has taken about more than 100 years to getting this shape of Nalanda. So one of the important archaeological excavation work among the several excavation in whole of the world you can recognize with Nalanda was also one of the most important excavation story. ये सारे व्यू हैं नालंदा के मोनास्ट्री का। ये पूरा सीरीज जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, एंड दिस इज द प्रेजेंट द लास्ट मॉनसून सीजन shape of the Nalanda. So this was the story of how we have exposed the site from its buried position to the present this shape, and what was the engagement and involvement of different scholars and excavators, conservators. So we can only think have been one of the kind of romance of excavation for this kind of magnificent site. Thank you very much.
for your kind attention about this huge and very important archaeological site. Thank you so World much, Heritage sir. Site. Actually, from us. Yes, sir. And for such beautiful and lively प्रेजेंटेशन, ऐसा लगा कि मैं तीसरी बार नालंदा घूम के आई। मतलब पहली बार मैं एक कॉन्फ्रेंस के ग्रुप के साथ गई थी, दूसरे बार स्टूडेंट्स के साथ, और तीसरी बार ऐसे डिजिटली पूरा फिर से जैसे लग रहा है रिकॉल हो गया। बहुत अच्छा लगा। आपने सोर्सेज के साथ स्टार्ट किया कि मतलब कहाँ से हमें नालंदा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, बहुत ही डिटेल वे में। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि डिफरेंट ट्रैवलर्स डिस्क्रिप्शन में हम नालंदा को किस रूप से पाते हैं। बिसाइड्स जो बहुत इंटरेस्टिंग था, आर्काइवल फोटोग्राफ्स along with the description of excavation, सबसे पहले डिस्कवरी स्टार्टिंग फ्रॉम कनिंघम ऑनवर्ड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जो हमारे लिए भी बहुत सारी फैक्ट्स जो है अननोन था, जो हम जान पाए। स्टूडेंट्स के लिए, बाकी लोग मतलब उसके लिए तो बहुत ही ये बेहतरीन था। और उसके साथ फिर हम लोग ये जाने कि टाइम टू टाइम कैसे एक्सकैवेशंस हुए फ्रॉम 1916 टू 1937-38, पूरा समय की बात हमने एक्सकैवेशन का हिस्ट्री देखा। और प्लस इस कॉम्प्लेक्स का एक एक डिटेल कहाँ क्या है उसके बारे में हमने सामने से भी आपसे सुना था, अब आज फिर से देखा, बहुत अच्छा लगा। और फिर फाइनली जो आपका कल्चरल सीक्वेंस और जो आपने बात हम लोग के ध्यान हम लोग का आकर्षित किया कि मॉर्टिमर व्हीलर ने स्ट्रेटिग्राफी का बहुत बात किए थे, और यहाँ पे हमको स्ट्रेटिग्राफिकल एक्सकैवेशन प्रॉपर में बहुत पहले देखने को मिलता है नालंदा में। So that was very interesting. So sir, thank you so much really from us for such lovely, for lively and for such beautiful presentation. और हमारे साथ शीला मैम भी है। प्रणाम मैम। आपको देखते हैं, आप रहती हैं तो बहुत हिम्मत मिलता है हम सभी बच्चों को। मैम, सो वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप हैं हम लोग के साथ। और अभी हम जो है कुछ क्वेश्चन शायद है वो लेना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कुमारी ज्योति का है कि हिस्टोरियन कहते हैं कि नालंदा को कई बार तोड़ा गया एंड कई बार बनाया गया भी है, तो क्या खुदाई के टाइम इसका कोई प्रमाण मिलता है? जैसा कि ये बहुत बढ़िया कुमारी क्वेश्चन ज्योति उन्होंने किया है। कुमारी ज्योति जी, बहुत अच्छा ये सवाल है, क्योंकि हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हम लोग हिस्टोरियन क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं उसके लिए मटेरियल सर्व करते हैं। जैसा अभी आपने फोटोग्राफ के माध्यम से जो ऑनगोइंग एक्सकैवेशन के जो रिजल्ट थे, जो इलस्ट्रेशन थे, उसमें आपने देखा कि कैसे बख्तियार खिलजी का जो 12वीं सेंचुरी के अराइवल का टाइम है, उसके पहले भी हमें विट्रीफाइड एविडेंस मींस जलने का साक्ष्य मिल रहे हैं। और मूर्ति जो यहाँ से एक्सपोज हुआ है मींस बख्तियार खिलजी के आने से पहले, इवन 7th सेंचुरी की जो मूर्तियां मिल रही है, 8th सेंचुरी की मूर्तियां मिल रही है, और उसको जो सब्सिक्वेंट लेयर काउंसिल कर रहा है, तो अर्लियर लेयर्स में जो रिट्राइव मूर्तियां हो रही वो भी टूटी हुई मिल रही है, स्ट्रक्चर भी टूटे हुए मिल रहे हैं। So we can consider the thing that in the historical time, even there might have been confliction between the different thoughts, और ये कारण भी बन सकते हैं। उसके बाद मैं एक यहाँ बताना, 6th century C में बिफोर द अराइवल ऑफ ह्वेनसांग, वो 637 सी में यहाँ नालंदा में आते हैं, और वो यहाँ पर कई वर्ष तक रहे हैं, यहाँ पढ़ाई किया है। उसके पहले वे उसके जो अकाउंट है उसमें विवरण मिलता है कि जब मैं यहाँ आया तो देयर वेयर सच हंड्रेड्स ऑफ प्रोस्पेरस एडॉब और मॉन्यूमेंट्स और सो एंड सो थिंग्स, बट इसके कोड को समझिए कि वो जो कह रहा है कि जब मैं यहाँ आया तो बहुत सारा था, लेकिन सभी मतलब प्रोस्पेरस नहीं था, डिसर्टेड था। इट मीन्स समथिंग, मतलब ऐसा कुछ अफेक्ट था, कुछ हुआ था जो सारे डिजर्ट हुए। तो हम लोगों ने साइंटिफिकली इसको एनालाइज किया है, और पान इंडिया कॉन्सेप्ट में ये सारे आज प्रूफ हो रहे हैं। आने से पहले लेट गुप्ता पीरियड में
एडवर्स क्लाइमेट का सिचुएशन था, बहुत ज्यादा आपको रेनफॉल का सिचुएशन था। और इसको पहले बॉटनिस्ट लोगों ने भी प्रूव किया है कि कैसे अर्ली मेडिएवल वार्म एज जो ग्लोबली ये था, ये दिस इज मतलब साइंटिफिक थ्योरी, ये जियो आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। जिससे अस्टको इमेजेस हैं वो सारे टूटे हुए मिलते हैं। अस्टको गुप्ता पीरियड का इमेज है और ह्वेनसांग गुप्ता पीरियड के बाद आते हैं और हर्षवर्धन फिर उसी को इनकेस कर रहे हैं। तो अस्टको इमेज के जो टूटा हुआ मिलने का स्वरूप है उसका ये नहीं हो सकता है कि सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्शन में वो डैमेज हुआ होगा, बल्कि ये भी हो सकता है कि एडवर्स मजबूर किया होगा और बहुत सारी चीजें डिस्ट्रक्ट हुई होगी। यहाँ पर हुनों के भी हम गुप्त के ही समकालीन देखते हैं कि हुनों का भी इस क्षेत्र में आक्रमण हुआ है। उसके बाद फिर मोहम्मदन कॉन्क्वेस्ट में तो हुआ ही। क्लाइमेटिक एडवर्स क्लाइमेटिक रीजन और उसके बाद फिर बाहर के जो इन्वेजन हुए दूसरे, ये सारे कारण बन सकते हैं डिक्लाइनिंग के। तो ये हिस्टोरिकल फिनोमेना है। Gargi, you're not audible. Sorry. निशा सिंह क्वेश्चन इज, सर आपने जो कलेक्शंस दिखाए उसमें क्या सिर्फ भगवान बुद्ध की ही मूर्तियां हैं? नालंदा संग्रहालय अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ बुद्ध का भी मूर्ति है, यहाँ हिंदू का भी बहुत सारा मूर्तियां हैं और ब्रॉन्ज में, बट जैन सेक्ट से रिलेटेड बहुत कम मूर्ति मिले हैं, बट सराउंडिंग पेरिफेरी में तो मिलते ही है। यहाँ तो है, ये सभी का है। ये सिर्फ रिलीजियस मीन्स बुद्धिस्ट रिलीजन का सेंटर नहीं था, दिस वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज। सो आप कल्पना कीजिए कि यहाँ एवरीथिंग मीन्स सिर्फ फिलॉसफी या फिर रिलीजन के ही थॉट से नहीं, आप साइंस के, आर्ट के, लिटरेचर के, व्याकरण, गणित, सभी चीज का तो यहाँ होता था ना इसमें। तो आपको यहाँ पर कलेक्शन में सभी प्रकार की चीजें हैं, रिलीजियस भी है, आपको नॉन रिलीजियस भी है, आर्ट के भी पीसेस हैं, सभी हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दीपशिका चौहान। ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट होने का क्या कारण रहा होगा सर? देखिए, जो अस्तित्व में आया है ये तो एक नैसर्गिक प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया भी है कि जो अस्तित्व में आया है उसको समापन होना है। आपको 12वीं शताब्दी तक आते आते बहुत सारा हमारा सामाजिक और राजनीतिक सेटअप ऐसा बन रहा था कि हम एक जगह से दूसरे जगह को भी सेटल हो रहे थे। इसके पहले आप देखिए कि नालंदा तो एक मोस्ट एंशिएंट लर्निंग सेंटर था ही, इसके साथ साथ और भी इस प्रकार के विहार या फिर इंस्टीट्यूशनल ये इस्टेब्लिशमेंट हो रहे थे। आपको विक्रमशिला में है, उदंतपुरी जो यही बिहार शरीफ शहर जो वर्तमान में बसा हुआ है, उसके बाद बांग्लादेश का सोमपुर विहार है, फिर इसके और पहले बल्भी में भी इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन बने हुए थे। तो ये सब इंस्टीट्यूशन तो जरूरत के हिसाब से बन रहे थे, बट जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो चेंज हो रहा था और जिस प्रकार से, जैसे बौद्ध संप्रदाय में ही हम देखते हैं कि कैसे पहले शुरुआती में महायानियों का ये सेंटर था, उसके पहले तो थेरवाद परंपरा सभी जगह चलता है, हीनयान परंपरा चलता है, फिर महायानियों का हुआ, उसके बाद फिर वज्रयानियों का हुआ, उसके बाद फिर तंत्रयानियों का हुआ, फिर लामाइज्म का फिर शुरुआत हो गया। तो ये सारे जो डिफरेंट जो बाद में इज्म जो शुरू हो गए, अपने ही जो सेक्ट के जो मूल स्वरूप थे, तो वो किसी इंस्टीट्यूशन का जो मोटो था वो धीरे धीरे उसका शिकार हो गया, फिर दूसरी जगह ये शिफ्ट होता चला गया, फिर पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन नहीं मिला और फिर समाज का भी नहीं मिला। तो ये कारण डिक्लाइन के रहे होंगे। 12वीं शताब्दी तक आते आते, मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट में आते आते तो लगभग खत्म ही हो जाता है। फिर समझते हैं ये, दिस इज सब्जेक्ट ऑफ हिस्टोरियन नॉट आर्कियोलॉजिस्ट।
Please unmute yourself. I'm constantly forgetting to unmute myself. Next question is from Brihaspati Bhattacharya. He is assistant professor of Sanskrit department of our college. He is saying that नमस्कार सर, आप उस स्थान से है जहाँ से परे आचार्य ने संस्कृत साहित्य को नए आयाम दिए एवं आपके व्याख्यान दोनों के लिए आपको अनन्य आभार। 2 क्वेश्चंस हैं उनके। पहला है, ऐसी जनश्रुति मिलती है कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां आक्रमण के समय जलाई गई थी, तो क्या इसके कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी है या केवल अनुमान के आधार पर ये संख्या बताई जाती है? दूसरी क्वेश्चन ये है, ये भी कहा जाता है कि कई विद्या परंपराएं नष्ट हो गई इस कारण, विशेष रूप से वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित, तो क्या इसके भी प्रमाण तथ्य के रूप में कहा जा सकता है? तो ये 2 क्वेश्चन बृहस्पति जी का है। संदर्भ वाली बात है। संस्कृत से संबंधित या फिर पांडुलिपियों की जहाँ तक बात है, नालंदा के बारे में आपको लामा तारानाथ और धर्मस्वामी वर्णन करते हैं कि उस समय जब यहाँ पर थे तो कैसे जो आक्रमणकारी थे, इस संस्था को जो नष्ट करना चाह रहे थे, वो यहाँ के मैन्युस्क्रिप्ट को भी वो जला रहे थे। धर्मस्वामी ऐसा in archaeological materialistic evidence, we have no such retrieval of such evidence from any part of the complex of ancient Nalanda University. तो ये हिस्टोरियन का लिखने का, क्योंकि धर्मस्वामी का रेफरेंस को भी हिस्टोरियन लोगों ने इसको सोर्स मटेरियल के रूप में यूटिलाइज किया, और तारानाथ मध्यकालीन ये बौद्ध धर्म का इतिहास को लिखा, तो उन्होंने भी इसके पतन के बारे में बताया। और हमको 3 महत्वपूर्ण लाइब्रेरी के बारे में भी यहाँ चर्चा मिलती है। आप कल्पना कीजिए कि नालंदा जो एक विश्वविद्यालय, नालंदा नहीं, कोई भी आज के युग की कोई भी विश्वविद्यालय हो, उसका सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होगा? उसके सूत्राज होंगे, उसके जो अपने फॉर्मूलाज होंगे, और उसके जो अपनी टेक्नोलॉजी होगी, वो सारी होगी। तो जब यहाँ से लोगों को किन्हीं कारणों से वो डर करके या फिर किन्हीं कारणों से यहाँ से पलायित हो रहे होंगे, तो आइदर उस चीज को वो ले जा रहे होंगे या फिर उनको लोगों ने जलाया भी होगा। बट जिस टाइम में एक्सकावेट हुआ, वही सारे पोर्शन जो एक्सकावेट हुए, तब इतना हमारे पास मेट्रोलॉजी भी डेवलप नहीं था, ये सारी चीजें, कि इन चीजों को भी हम लोग मतलब ट्रेस कर पाते। अभी बहुत सारे वर्क यहाँ पर करना बाकी है। ये 100-200 ईयर्स के बाद भी हम लोग चाहें तो काम कर सकते हैं। ये नए जो आर्कियोलॉजी के जो रिसर्च मेथड्स हैं उस पर्सपेक्टिव से, तो कहीं जा करके हम लोग एक कन्विंसिंग पॉइंट पर ये सारे जो क्वेरीज हैं, ये सारे इतिहास के जो डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हम लोग समझ पाएंगे। मैं तो बस इतना ही समझता हूँ। Thank you, sir, for such beautiful explanation. Sir, next question Tanya Pandey से है. What was the contribution of Nalanda University in the education of ancient India? 2 questions है. एक question ये है और दूसरा है, is Nalanda only famous for Buddhist roots as a center of learning? So these 2 questions from. जहाँ तक बात है इसका दुनिया, तान्या पांडे। ओके, थैंक यू तान्या जी, बहुत अच्छा सवाल है। जहाँ तक बात है कि एजुकेशन के क्षेत्र में नालंदा का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आप देख रही हैं कि हमें यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल मटेरियल मिल रहा है, चाहे वो स्थापत्य का हो, चाहे वो कला का हो, या फिर मेटलर्जी का हो, या फिर जो बुद्धिस्ट या फिर जैन या फिर और दूसरे जो रेफरेंसेस स्क्रिप्चर्स में जो मिलते हैं, कि यहाँ पर हेतु विद्या का, यहाँ पर आपको व्याकरण का और वेदास का और एस्ट्रोनॉमी का, ये सारे भी पढ़ाई होते थे। तो अगर आज से 1000 या 1500 1400 वर्ष पहले ये सारे
अगर विधाएं हमारे पास में थी, तो आज के युग में हम लोगों के पास जो आज है, तो कहीं ना कहीं किसी रूप में कैरी फॉरवर्ड होकर के आया। हम लोग जानते हैं कि कैसे ह्वेनसांग यहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट लेकर के अपने देश में वो गए थे, चीन में गए थे, और उसका जब बाद में चीनी भाषा में अनुवाद हुआ, चीनी भाषा से फिर किस प्रकार से तिब्बत के क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म को लोग मानने वाले थे, उन लोगों ने फिर कैसे अपनी तिब्बती भाषा में किया, और उसका फिर जो स्वरूप है, चाहे ये विभिन्न विधाओं का हो, वो सब फिर वापस हमारे देश में आता है। और उसी का ये हो सकता है कि बहुत सारे अंश जो है विभिन्न संस्थाओं में, न सिर्फ जो है भारत की बात करें, क्योंकि उसके कंटेम्प्ररी में उस कोई दुनिया, ऑक्सफोर्ड की बात करें, कैम्ब्रिज की बात करें, ये सब बहुत बाद में आए, 100-200 साल बाद में ये सारे आ रहे हैं। सॉरी, तो ये सारे जो एविडेंस बाद में आ रहे हैं, तो हम इस आधार पर समझ सकते हैं कि नालंदा का कंट्रीब्यूशन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए, ये हमको बाद में फिर अपने ही चीज कैसे प्राप्त हो रही है दूसरे देशों के माध्यम से, चाहे किसी भी का हो, कला का हो, धर्म का हो, या फिर विज्ञान का हो, दर्शन का हो, सब हमें मिल रहा है। तो दुनिया को कंट्रीब्यूशन तो है, इसमें मानना पड़ेगा, हम लोगों को स्वीकार करना होगा। और दूसरा इनका सवाल था, सेकंड क्वेश्चन था वो नालंदा क्या ओनली फेमस फॉर बुद्धिस्ट रूट एज अ सेंटर ऑफ लर्निंग और नॉट? हाँ, ये था बताया कि यहाँ पर विज्ञान का भी सभी चीज का होता था, और हिंदू के लिए भी है टेम्पल साइट 2, तो बेसिकली ये हिंदू टेम्पल ही था, शैवा टेम्पल था ये पूरा, यहाँ उसी के एविडेंस मिलते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ बौद्ध अध्ययन का केंद्र था। थैंक यू सो मच सर, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थैंकिंग नोट्स फॉर यू। सब लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत सारे लोग थैंक यू बोल रहे हैं, और नालंदा को जैसे डिजिटली विजिट कर पाए वो लोग, ये बात भी सब लोग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर फॉर सच लवली प्रेजेंटेशन। और अभी हम लोग के साथ हमारी सीनियर कलीग दीदी डॉक्टर सुशीला भारती हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ऑफिशियली वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करे। सुशीला दी। सुशीला दी, सुशीला दी आप सुन पा रही हैं? हाँ हाँ, एक्चुअली मैं म्यूट ही थी अभी तक। हाँ, थैंक यू गार्गी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स टू डॉक्टर शंकर शर्मा सर, जिन्होंने इतने कम समय में इतने बड़े टॉपिक को इतना डिस्क्राइब करके हमारे बच्चों को बताया, विशेष जानकारी दी। और हम तो आपके प्रति विशेष रूप से भी आभारी हैं, क्योंकि 2 साल पहले हम लोग विजिट जब नालंदा का किए थे, तो आपके द्वारा हमारे बच्चे बड़े बहुत सारी जानकारी लेकर के आए हुए थे। आपने निर्देशन उनका किया और ज्ञानवर्धन भी किया, तो अगेन थैंक यू सो मच सर। अब मैं प्राचार्य के प्रति भी आभारी हूँ, जिनके सहयोग और मार्गदर्शन से ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो पाते हैं। थैंक यू दी। शीला दी को सादर प्रणाम संप्रेषित है, जिनकी उपस्थिति हमारा उत्साहवर्धन करती है। आभार दीदी। विभा दी के प्रति भी, डॉक्टर विभा जोशी के प्रति भी मैं आभारी हूँ। थैंक यू दी। संजीव सर, प्रीति जी के आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। काले से ही श्रेया पाठक, सुभाष मीना सर, बृहस्पति सर, आकांक्षी श्रीवास्तव, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद संप्रेषित है। तथा बलिया से राम प्रताप सिंह जी को भी थैंक यू सो मच। अन्य कॉलेज में बसंत कन्या महाविद्यालय से मेरी दोस्त और कलीग भी डॉक्टर नैरंजना श्रीवास्तव, आरती कुमारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वर्चुअली जुड़ करके हमें आप लोगों से बल मिलता है। अब मैं अपने कलीग और अनुज
गार्गी और राजीव सर को संयुक्त रूप से साधुवाद और बधाई देती हूँ, जिनके प्रयास से यह कार्यक्रम आयोजित हो पाया है। बधाई के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद भी, साधुवाद भी। छात्र हैं, मुख्य अधिकारी हैं, मेरी छात्राएं, जिन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी। फाइनली थैंक यू सो मच आप सबका, कि आप सब लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू दीदी, आपको भी। आप हमेशा हम लोगों को एकदम बड़ी दी की तरह सपोर्ट करती हैं, हमेशा इंस्पायर करती हैं, तो आपको थैंक यू। आप सबको बोलिए, आपको कोई मतलब बोलना नहीं हुआ, तो हम सभी की तरफ से आपको भी थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच सर वंस अगेन आपका प्रेजेंटेशन के लिए। ये मैं आप सभी को इनवाइट करता हूँ नालंदा आने के लिए, क्योंकि अब पैंडेमिक से भी हम लोग लगभग उबर रहे हैं और नालंदा पूरी तरीके से खुल गया है। तो आप सब को मैं अपनी नालंदा संग्रहालय की ओर से आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप नालंदा को आइए। जी सर, बिल्कुल हम लोग आएंगे। सेशन के बच्चे आके बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोग यहाँ आपकी सेवा में रहेंगे। बिल्कुल सर, भैया थैंक उम्मीद यू। कर भैया एक प्रश्न है, विद्यार्थी ने पूछा हुआ है। सो सर, इन recent past archaeologists trace remains of Telhara University, which is 40 kilometers from Nalanda University. So what's your view on it? That was it a seat of our research or a competitor of Nalanda? This is matter of debate. I mean, since there is lot of work has to be carried on, because whatever the excavation in, although about 6 to 7 sessions they have excavated the site, and the material has been rebuilt starting from the Kushan period up to the Pala level, but in the present shape of the evidence, we cannot consider the things that the same was बस हो गया, मेरा काम हो गया। learning. So there is lot बोलिए, वो एक आखिरी में क्वेश्चन एक लड़की बोलते हैं कि लोग बोलते हैं, एक्सकेवेटर भी बोलते हैं कि ये आपको किला का ये बालाजी का बिहार था, और बहुत सारे एविडेंस भी है, इंपॉर्टेंट एविडेंस है, लेकिन अभी बहुत सारे वर्क करना बाकी है अभी। तो हम तो अपने व्यू से नहीं कह सकते हैं कि इट वाज सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, अभी बहुत सारे काम बाकी है वहाँ, तो प्रेजेंट सिनेरियो में नहीं कह सकते हैं। थैंक यू सर फिर से, और ये हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि सर आप फिर से फ्यूचर में हम लोगों का इनविटेशन को एक्सेप्ट करें और हम लोग को फिर से ये तो पैंडेमिक हमको सिखा दिया, पैंडेमिक हमें सिखा दिया कि हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ से मिल सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही एक अच्छी एस्पेक्ट है पैंडेमिक के। ओके, थैंक यू सो मच सभी को, और सभी जो लोग इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, हमारे सीनियर टीचर्स, कलीग्स, स्टूडेंट्स स्पेशली। और इसी के साथ हम प्रोग्राम तब बाइंड अप करते हैं। राजीव, प्रोग्राम बाइंड अप करते हैं फिर। हाँ, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।